Hello students. So in the last lecture we have started the another property which is called ionization enthalpy. So or is energy. Ionization enthalpy or ionization energy. We have discussed regarding the definition of this. That is what energy required to remove an electron from valence outermost cell. Okay. So ionization enthalpy is nothing but energy required to remove an electron from valence cell or outermost cell or the loosely bonded electron. Okay, from an atom, from an isolated gaseous state atom. It is called as ionization enthalpy, ionization energy. Now this ionization energy depends upon or this the value of ionization enthalpy. Okay, is largely influenced by some of the factors that we are going to discuss over here. Before that, this ionization enthalpy is expressed in terms of, so what is this unit? Unit of ionization enthalpy. Okay, sometimes we will express as electron volt EV. Okay, ionization enthalpy is expressed as electron volt. Okay, or electron volt per atom. Sorry. Electron volt per atom, or we can use kilocalories per mole, or we use another unit that is kilojoule per mole. So these are the units to express this ionization enthalpy. So ionization enthalpy, if we are explaining the ionization enthalpy for each and every atom, what actual ionization enthalpy or ionization energy required, then we will talk in terms of electron volt. Otherwise, if we are talking about the mole, okay, so 1 mole of atoms, okay, so what is the amount of energy required to remove electron from 1 mole of atom? Then we use these two, kilocalories or kilojoule per mole. Okay, so these are the units for ionization enthalpy. Now, what I am talking about? I am talking about factor affecting this ionization enthalpy. Okay, factors affecting the ionization enthalpy or ionization energy. The first factor is nuclear charge. Nuclear charge. What is nuclear charge? Charge present on the nucleus. Okay, charge present on the nucleus. That is positive charge. What we are trying to say? Okay, what happens when the number of protons increases? Okay, or the number of positive charge on the nucleus increases. What happens to ionization enthalpy? So as this nuclear charge increases, ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy increases. Okay, so if we move from lithium to beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Okay, so every time you know that this value 3 protons, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So nuclear charge. Here there is 3 positive particles present in the nucleus, that is 3 protons are present. Now this
this is the nuclear charge is increased by 1, here once again increasing by 1. So if we look at the ionization enthalpy, okay, as nuclear charge increases while moving from lithium to neon, okay, ionization enthalpy also increases. Ionization enthalpy also increases. If you want the data for the same, so I will tell you. So this is about 500, then it becomes 900. Okay, here it is 800 and 1040. Sorry, 1086, 1402, and 1314. For oxygen it is 1314, and then for fluorine it is 1681 and 2008 kilojoule per mole. Okay, so what this is kilojoule per mole. So if you observe, as the charge increases, the value of this ionization enthalpy, okay, goes on increasing. At the start it is 500 kilojoule per mole, and at the end, okay, when we move at the extreme right hand side, what we observe, this is about 2000. So why? Because nuclear charge increases. Okay, so as nuclear charge increases, the value of ionization enthalpy increases. The second factor which affects on the ionization enthalpy is atomic size. Atomic size. Atomic size, or you can say atomic radius. Okay, so what happens if the size of atom increases or if the size of atom decreases? What happens? With increase in atomic size, ionization enthalpy decreases. So what happens if we take the example of lithium, sodium? Okay, now lithium has only 2 cells, okay, and sodium has 3 cells. Okay, now the size, when we move from lithium to sodium, atomic size increases, atomic radius increases. Okay, now the distance of this electron from the nucleus also increases. Okay, so as the distance between nucleus and electron increases, the attractive force between nucleus and electron decreases. Okay, so as the atomic size increases, the attractive force between this positive nucleus and electron, negative electron, decreases, and that's why it is very easy to remove an electron. Okay, it is very easy to remove an electron from the large size atom. Okay, तो जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है, बहुत बड़ा साइज का एटम है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो दोनों एक दूसरे को बाइंड करके रख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में अगर आपकी एटॉमिक साइज बड़ी है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है तो आपको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितनी एटॉमिक साइज बड़ी है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, एटॉमिक साइज। Then the third one, okay, penetration effect. Penetration effect of electrons. Penetration effect क्या है, इसको समझते हैं। देखो,
ये आपकी यस है, ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ये यस है, ये पी और पी आपकी सबसेल है या फिर पी ऑर्बिटल है, उसके बाद में डी होगा, उसके बाद में क्या होगा एफ, ठीक है, उसके बाद में एफ होगा। अगर आप यस का शेप देखते हो, यस ऑर्बिटल का शेप की बात करते हैं, तो इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है, कैसा है, लाइक अ स्फीयर है, ओके, स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप होने से क्या होता है कि यस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, स्फेरिकल शेप मतलब इलेक्ट्रॉन के अराउंड ये सर्कल टाइप बनाएगा, ओके, लाइक अ स्फीयर बनाएगा। तो एटम को हमने स्फीयर कंसीडर किया है, न्यूक्लियस भी स्फीयर लाइक है, और इस ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फीयर के जैसा है, तो स्फीयर बनाएगा। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब भी s ऑर्बिटल में होंगे, ओके, whenever the electrons are present in the s orbital they are most close toward the nucleus, okay, they are most close, okay, तो s में जब भी होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्लोज होते हैं, इसके न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, attractive force between nucleus and s orbital electron, okay, is highest, क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगर s को p के साथ कंपेयर करते हो तो p का जो शेप है वो डबल शेप है, p के ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ऐसे डबल शेप होते हैं। s आपका स्फेरिकल है तो p कैसा है, डबल शेप। तो डबल शेप होने की वजह से कंपेयर टू s इनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है या फिर इनका जो डिस्टेंस रहेगा न्यूक्लियस से बाउंड होने की टेंडेंसी जो रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि उसका शेप अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अलग-अलग है। तो s से कम किसका होता है, p से होता है। अगर d की बात करते हो तो d का जो शेप है वो डबल बंडल शेप है, या ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, ओके, कैसे होते हैं, डबल बंडल शेप होते हैं। तो d ऑर्बिटल जो ये आपके s है, ये p है और ये d ऑर्बिटल, ओके, तो ये डबल बंडल शेप होने की वजह से p से अगर इसको कंपेयर करते हो तो d की पेनिट्रेशन या फिर इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बाइंड होने के लिए जो टेंडेंसी है कि जो जितना अंदर जाके वो बाइंड होगा वो इफेक्ट कम होता है, और f में तो बहुत ही कम होता है, कि f में तो बहुत ही कम होता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट आप कैसे बताते हैं कि s ऑर्बिटल हैज अ मैक्सिमम, देन p लोअर देन s and d is lower than p and f is lower than d, okay, now depending upon this penetration effect, if electrons are present in the s, they more strongly bonded with nucleus, what it happens, this ionization enthalpy increases, क्योंकि most strongly bonded है, s में अगर है तो क्या है, most strongly bonded है, most strongly bonded है तो एनर्जी ज्यादा देगी, ओके, अगर p में है तो s से कम एनर्जी देगी, d में है तो p से भी कम, f में है तो सबसे कम। So if electron is present in f orbital, then we can remove easily. It means that ionization enthalpy is low. Ionization enthalpy is low. So depending upon the electron configuration, what we are going to say, if your valence shell is s, then ionization enthalpy is high. If your valence shell is p, then it is lower compared to this. Okay, if your valence shell is d, then it is lower than p. And if it is f, then it is very easy to remove an electron, okay, or the ionization enthalpy is lower in case of the element which has the valence shell or the electrons are present in the f shell, okay, it is very easy to remove them. The next one is shielding effect. Shielding, or this is also called as screening effect. Shielding or screening. So what is screening or shielding effect? For example, consider this is your nucleus and this is your one cell, okay, and this is another cell. Now
if electron valence, this is your valence cell, okay, this is your valence cell, and this is your inner cell which is fulfilled. This is what? Fulfilled. Now whenever this electron come into this orbital of this cell, what happens? This electron experiences two types of forces. One attractive force from the nucleus, so it experiences nuclear charge or nuclear charge. Okay, that is attractive force. Okay, what it is? It is attractive. Okay, attractive force. Another force experienced by this electron is that the repulsive force from the electron which are present in the inner cell. Now this is your inner cell. This carrying electrons means negative charge, and this electron, upcoming electron is also negatively charged. Now this negatively charged electron repel this electron. So this is what? Repulsive force. Okay, this is what? Repulsive force from inner electrons. Okay, inner cell electrons. Inner cell electrons. So what we are saying? So due to the repulsive force which is present or which the repulsive force experienced by upcoming electron, okay, from the electrons present in the inner cell, okay, what we say that this inner cell makes a screen between nucleus and this outer layer. क्या कर रहा है? देखो, एक नया इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल में आ रहा है, एक नया इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दो टाइप के फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ओके, एक कौन सा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा. दूसरा एक फोर्स उसको कैसा मिलेगा? एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा. किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन पहले से इनर सेल में प्रेजेंट है उनसे. ठीक है, अभी नेट न्यूक्लियर चार्ज, अभी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा वो कैसा रहेगा? एक्चुअल टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलेंगे. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जितना रिपल्शन करेंगे, ओके, तो एक्चुअल इसने जो एक्सपीरियंस किया है वो कितना रहेगा? इस रिपल्सिव फोर्स को माइनस करने के बाद जो रहेगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट रहेगा इस इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि ये आपको रिपेल कर रहा है. एक इधर डायरेक्शन में है, एक दिस डायरेक्शन में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा? थोड़ा नलीफाई करेगा. थोड़ा क्या करेगा? नलीफाई करेगा. तो नलीफाई करने से क्या हो जाएगी? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है? एक्चुअल एक्सपीरियंस किया हुआ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम रहेगा. इससे टोटल चार्ज से कम रहेगा. अभी ये जो हो रहा है, ये जो रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो क्या बोल रहे हैं लोग? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो क्रिएट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक स्क्रीन बनाते हैं. एक क्या बना रहे हैं? स्क्रीन बना रहे हैं. किसके बीच में? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में. ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियर चार्ज टोटली इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता है. टोटल न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता है क्योंकि इधर बीच में क्या है?
स्क्रीन है, ओके। या फिर ऐसा बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की एक शील्ड बन रही है, प्रोटेक्टिव शील्ड बन रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा, ओके। तो अभी ये इनर ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इनर ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इनर ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड रहेगा उस इनर ऑर्बिटल में या इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेगा? ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा, ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा, कम है तो कम रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द व्हाट inner cell. So what we say that screening effect or shielding effect. If screening effect or shielding effect SE okay increases ionization energy, ionization enthalpy, what happen? Increases. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ओके, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, ओके, वो क्या हो जाएगी? सॉरी, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना स्ट्रांग हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोजली बॉन्डेड है। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। अभी ये भी एक फैक्टर है कि आपके ऑर्बिटल्स कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप यस की बात करो तो यस में एक ही ऑर्बिटल आता है, इसको यस बोलते हैं। यस में क्या आता है? एक ही ऑर्बिटल होता है। जब भी आप पी सेल बोलते हो, पी सबसेल की बात करते हो, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप बी की बात करते हो तो बी में क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, ओके। और अगर आप एफ की बात करोगे तो एफ में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये एफ। अगर देखो 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यस में एक ही ऑर्बिटल है, तो अगर एक यस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया, ओके। क्योंकि यस में एक ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। तो यस सबसे है तो उसमें क्या होगा? अगर यस में आता है तो ये यस की सिचुएशन में ये हाफ फील्ड हो जाएगा, और 2 अगर आ गए तो ये फुल फील्ड हो जाएगा। अगर समझो हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड सिचुएशन है, ओके। अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड है तो एटम हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एटम हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर किसी एक एटम में क्या है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आपकी एस पी डी या फिर एफ हाफ फील्ड पोजीशन में, तो उस एटम को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ओके। इन केस ऑफ पी, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। पी में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड होने से क्या हो जाएगा? वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। अभी कोई भी एक एटम में पी हाफ फील्ड है, ओके, मतलब NS2 NP3 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिधर आपको मिलेगा उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। किससे ज्यादा रहेगी? NS2 NP4 वाले से ज्यादा रहेगी। ये इसमें हाफ फील्ड सिचुएशन है, ओके। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, इससे कंपेयर करते हो कि ये मोर स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में हाफ फील्ड सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा? वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? वो
मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फुलफिल्ड सिचुएशन, मोर स्टेबल मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे ही डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हाफ फिल होता है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इधर भी D5 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। F में भी हाफ फिल सिचुएशन क्या है, अगर F में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल सिचुएशन। ओके, हाफ फिल सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। वैसे ही D10 केस में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये फुलफिल्ड है। और F14 में भी आपको क्या मिलेगा कि ये हाफ फुलफिल हो गया, तो इसको क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी। सो इफ an atom has half filled or fulfilled orbitals, the atom has extra stability, okay, and the ionization enthalpy is high, okay, it is higher। अगर हाफ फिल फुलफिल्ड सिचुएशन है तो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है या फिर हाइयर रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ओके, तो इस फैक्टर को ध्यान में रख के हम क्या बात करेंगे, ट्रेंड को बताएंगे, ट्रेंड को बताएंगे कि कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, तो पीरियड में मूव करते हो तो क्या होता है, और आपके ग्रुप में मूव किया तो क्या होता है, ये बताने के लिए हमें ये पूरे पांचों जो फैक्टर्स है उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, ओके, तो ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड्स इन ग्रुप में कैसा हो जाएगा ट्रेंड, देखो अगर कोई भी एक ग्रुप लेते हो, टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो, टॉप टू बॉटम, ओके, तो क्या बताया आपको, while moving from top to bottom, while moving from top to bottom, atomic size, sorry, पहले हम न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज increases and atomic size also increases, atomic size increases, okay, so कौन से भी एक ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करो, आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगी। ओके, तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होती है तो आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम। ओके, तो देखो इधर क्या है, इसका जो आउटर मोस्ट है वो 2s है, इधर 3s है, इधर 4s, 5s और 6s। ओके, नो डाउट आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर के साथ, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर टाइम एक नई सेल भी ऐड हो रही है, हर टाइम एक नई सेल ऐड हो रही है। मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो रहा है, या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, उसको यार क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ओके, सो while moving from top to bottom, what we can say over here, okay, while moving from top to bottom, आप क्या बता सकते हो, देखो while moving from top to bottom, atomic size increases and hence ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decreases। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ जाओगे क्या हो जाएगा, आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी इजी है अगर आप लिथियम से कंपेयर करो या फिर सोडियम से कंपेयर करो, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है, एनर्जी कम लगती है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी स्मॉल साइज एटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप कट रेट, व्हाई ड्यू टू एटॉमिक साइज, ओके। सो इन ग्रुप्स हो गया। तो इन पीरियड से क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, पीरियड से क्या होता है, ओके। एटॉमिक साइज decreases with increase in what, nuclear charge जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। तो आप लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करोगे पीरियड में, आपको क्या मिलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज मिलेगी ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, के एक ही बात बताएंगे, उससे क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, ओके। तो क्या बताने का है हमें, ट्रेन में पीरियड्स और ग्रुप का ट्रेन हम जब भी बताएंगे तो हम बोलेंगे कि while moving from top to bottom atomic size increases, okay, atomic size increases and hence ionization potential, ionization enthalpy, ionization energy decreases. While moving in the period from left to right, atomic size decreases with increase in nuclear charge, and that's why ionization enthalpy increases with decrease in atomic size. Okay, so this is regarding the ionization enthalpy, ionization energy, ionization potential. The remaining part we will go to discuss in the next lecture. Thank you.